Hello, Mansi. A warm welcome. How are you? I'm very good, sir. How about you? Yeah, wonderful. Thank you. So, what question do you want to ask, or what do you want to discuss right now? So, my question is regarding inflation and price stability. And RBI Oh, has one. some tolerance level of inflation. So, regarding that, I want to Agreed. ask you. Wonderful word. Wonderful word. So, I think when we talk about in inflation, then whole world has been facing higher inflation levels. In that sense, if we see, but what we can take up is that. Okay, tell me what is the mandated level? What is the highest percentage level to which RBI can go? So, it is 6%. The 6%. target range Okay, is what? But 2% yeah, to wonderful, 6%. wonderful. Yes, target rate is 4 to 6, but legally mandating or legally speaking, it should keep it at 4%. That is what it should be. 4%. Maximum is 6%. So when I say this, the present, if I say in January 2022, whatever the data is over here, if I say that inflation is around 5 point something, so 5.9%, in fact, if I would say, so that is what inflation it is, if you So, it is remember, what inflation, wholesale price inflation. or it is wholesale price inflation. Can we say it is headline inflation? Headline CPI, Consumer Price Index? Oh, so in headline inflation, we include food and fuel price inflation. So, Correct, we can say that. correct. But then tell me, this is headline inflation or Consumer Price Index, or you said wholesale price index, what you said, WPI. So what Anji. my point is that is the core inflation higher or is on the lower side? So, it is on the lower side. Are you sure? I want to think you once more. So Core right, inflation. Hanji, right now it is on the higher side. It is at Right now, it is 6%. not, but it is at 6%. Wonderful. But I think from last 3 years, it is at around 6% only. So since pre-pandemic times to post-pandemic times, core inflation is at 6%. So core Hanji, inflation is stubbornly at higher level. It must also come down, which is not happening. Hanji, sir. And this signifies higher inflation is embedded in the system. When we say embedded in the system, that means what? Can you give me a one phrase for it? When you want to say that the CPI और WPI ये तो फिर भी थोड़ा कम ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है वो तो उतना ही है जितना है, वो कम नहीं हो रहा है, So तो we can उसके लिए क्या say आपके पास कोई? it is इट sticky इज in बिकॉज ऑफ nature. व्हाट? It is नहीं, sticky in स्टिकी तो nature. अंग्रेजी हुई, अंग्रेजी हुई, वो तो अंग्रेजी हुई. आई थिंक वी कैन से वेज प्राइस स्पाइरल. यानी Hanji. एक तरफ वेजेस, एक Hmm. तरफ प्राइसेस, इसका स्पाइरल साइकिल है. वेज प्राइस स्पाइरल. डू यू एग्री विद मी ऑन दिस? Yes, sir, I agree with you. हाँ, सो ये कॉम्प्रेंशन आना चाहिए, वेज प्राइस स्पाइरल. और उसमें क्या है, उसमें इफ आई टेल यू वेरी सिंपली, तो कंपनीज हायर वेजेस के ऊपर तुम देखो हायरिंग कर रही हैं, but on the other side cost input is also higher. And what is another big factor which is pushing inflation higher, which had been pushing inflation higher in India, very big factor which had been in news, So which we supply often chain talk about. disruptions. ये तो बड़ा है, ये बड़ा वर्ड है. सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन भी जिस पे डिपेंडेंट है. और क्लू दूं मैं, इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी उससे जुड़ा हुआ है. So crude oil. और क्लू दूं मैं, क्रूड ऑयल भी उससे जुड़ा हुआ है. So इसका आंसर होना चाहिए एप्रिसिएशन ऑफ और एप्रिसिएशन ऑफ रूपी. जो आपने सारे वर्ड बोले वो सब के सब एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी से related है. जुड़े हुए हैं. डू यू एग्री विद मी और नॉट? Hanji, sir. सो दैट मीन्स वो हो गया बड़ा फैक्टर. कोर इन्फ्लेशन एक बड़ा फैक्टर है. उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी एक बड़ा फैक्टर है ऑब्वियसली. एक और बड़ा फैक्टर है जो आपने पहले बोला, सप्लाई चेन, वो भी किस चीज पे जुड़ा हुआ है? ग्लोबल इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है. यानी राइट जगह राइट वर्ड लेके आना पड़ेगा, नहीं तो हम बात कन्वे टुकड़ों में करेंगे, नहीं कर सकते. उसके बाद तो सभी लिख देंगे रूपी डेप्रिशिएट होगा तो भाई इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएगा. अगर और भी डेप्रिशिएट हो जाता है तो सेंट्रल बैंक को जो है टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी लेनी पड़ेगी. ये तो सबको पता ही है और सब लोग इतना तो कर ही लेंगे, लेकिन क्या इससे बात बन जाएगी? नहीं बनेगी. अच्छा, एक और चीज बताओ, एक और चीज बताओ. वी हैव बीन रीडिंग फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स आल्सो इन द न्यूज़पेपर्स. कौन से टाइप का इन्फ्लेशन है जो इन चीजों को थोड़ा और भी बढ़ा रहा है? बाकी आपने सब बता ही दिया, लेकिन वर्ड अभी तक आपने नहीं बोला है. मतलब मैं ये नहीं कह रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग इकोनॉमिक टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, आई एम जस्ट टॉकिंग इन्फ्लेशन इन दैट कॉमोडिटी. ऐसी कौन सी कॉमोडिटी है जो पूरे भारत से जुड़ी हुई है? ऐसा कौन सा एरिया जो पूरे भारत से जुड़ा हुआ है और उसके इन्फ्लेशन बढ़ने से, उसमें अगर इन्फ्लेशन है, अगर आई मीन टू से उसमें अगर कॉस्ट प्राइसेस हायर हैं, देन देयर इज ऑब्वियसली ए परसेप्टिबल प्रेशर ऑन इवन द पुअरेस्ट ऑफ पुअर इन द विलेजेस. So fertilizer. और इससे ब्रॉडर, फर्टिलाइजर से भी ब्रॉडर, सीरियल इन्फ्लेशन.
एनिमल फीड से लगा लो या फिर बाकी इनपुट से लगा लो, सीरियल इन्फ्लेशन वी कैन से। सो सीरियल इन्फ्लेशन रिमेन्स वेरी हाई, एक्सेप्शनली हाई, अराउंड 13%। जबकि सप्लाई और जो डिमांड है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देयर आर इंस्टीट्यूशंस लाइक यू हैव फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, वो इस पे काम करते हैं, सारी चीजें होती हैं। अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेंट अबाउट विद जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो है गरीबों को जो देना चाहिए उसको फ्री कर दिया, लेकिन हाँ फिर भी जी। सीरियल इन्फ्लेशन बहुत हाई हाई। है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर्स अगर हैं, अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो मैं सिर्फ एक चीज जोड़ूंगा, जैसे मैंने बोला हेडलाइन इन्फ्लेशन, या मैंने बात की कोर इन्फ्लेशन की, मैंने बात की बाकी चीजों की, तो मैं इन सब में अगर बोलूं, आप अगर आरबीआई हो, आप अगर आरबीआई गवर्नर हो, आप अगर आरबीआई गवर्नर के अर्जुन हो और आपकी आंखें एकदम लगी हुई है चिड़िया के ऊपर, तो आप टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर और जाओगे नहीं जाओगे ये एकदम से डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो ये ना इट विल हैपन विद टाइम, तो और टाइटर किया, और अगर हमने मॉनेटरी पॉलिसी को और वो किया लाने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी में अभी तो मॉनेटरी पॉलिसी इज लुकिंग वेरी वेरी हॉक आई विद ऑन इन्फ्लेशन, बट मे बी दे मे आल्सो पुट लिटिल बिट मोर प्रेशर सो टू ब्रिंग इट लिटिल डाउन। बट डू यू थिंक इट इज द रियल आंसर? सर सिर्फ रियल उससे काम हो आंसर, जाएगा? नहीं sir, not only with that we can say हम्म। that public sector also needs to like work in अच्छा, synergy with the RBI. मुझे एक इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ, मुझे एक एक्ट का नाम बताओ, या मुझे एक सिस्टम का नाम बताओ जो रूल बेस्ड सिस्टम है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद ही बनाया था, पार्लियामेंट ने पास भी किया था, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा अभी। तो पार्लियामेंट ने बनाया था। हाँ, पार्लियामेंट ने बनाया था, फिस्कल टारगेट के लिए बनाया था, कि भाई फिस्कल टारगेट, सारा खेल तो फिस्कल टारगेट का ही है तो एक तरीके से। FRBM एक्ट। एफआरबीएम एक्ट, वंडरफुल। सो एफआरबीएम एक्ट को सेंटर में लेके आना चाहिए था, अब तो उसका कोई बात ही नहीं करता। हाँ जी सर। ये इंस्टीट्यूशन एक तरीके से इररेलेवेंट हो गया है। हाँ जी सर। तो अब वो इंस्टीट्यूशन, जैसे वो इंस्टीट्यूशन इररेलेवेंट हो गया है, हमने उसको उसकी सैंक्टिटी को तोड़ा डेफिसिट फाइनेंसिंग के तहत, तो क्या हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग की सैंक्टिटी को भी तोड़ दें? नो सर। नहीं तोड़ दें। तो यानी कि हमें आंसर चाहिए होंगे इन चीजों के, कि एफआरबीएम को तोड़ा भी तो क्या फायदा हुआ, या हम जैसे डेफिसिट फाइनेंसिंग को हम, अब तो प्लानिंग है ही नहीं उस तरीके से। ओके, तो तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें उस तरीके से क्या करना चाहिए, तो सॉल्यूशन वैसे लाना पड़ेगा। हाँ जी। सॉल्यूशन में आपको कीवर्ड्स लेके आने पड़ेंगे, आपको फ्रेज लेके आने पड़ेंगे, जो आपने मुझे चीजें बोली इसका मतलब आपको आती हैं, लेकिन जब तक आप उनको स्ट्रक्चरली और प्रोसीजरली माइंड से लिखोगे नहीं, सिंपल तरीके से एकदम एक पैराग्राफ के अंदर, तो काम बनना थोड़ा मुश्किल होगा। चाहे वो प्रीलिम्स है, चाहे वो मेंस है, चाहे वो इंटरव्यू है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड इन दैट सेंस। एनी मोर डाउट ऑन दिस? No, sir. So, if I am asked a question regarding ki what steps should be taken regarding हाँ, तो वो inflation वो जो or आपको आते हैं, वो जो आपको आते हैं वो स्टेप्स फिर आप बताओगे सारे के हाँ सारे। जी, हाँ चाहे like we फिर वो can't be सेक्टोरल इकोनॉमी के लिए है, चाहे फिर वो सेक्टोरल के लिए, इकोनॉमी के लिए है, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसी चीज है, इकोनॉमी की ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इकोनॉमी पे डिपेंडेंट नहीं है। नहीं है। हाँ जी। वो गवर्नेंस पे भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी है, रूल ऑफ लॉ पर भी है, सिविल सोसाइटी पर भी है। हाँ जी सर। बस फिर, तो स्टेप्स का टेंशन नहीं है, लेकिन सारे पिक्चर को लेके आना एक बहुत बड़ी बात है। बात है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये एक मैंने जो आपको बताया, उसके बाद आपको समझना, और डेटा तो फिर इसमें याद अपने आप हो ही जाएगा, आप कंपेयर भी कर सकते हो, और आप बाकी चीजें भी देख सकते हो। ऐसे ही आपको अगर कोई और क्वेश्चन हो तो अगेन पिक इट अप एंड विल ट्राई टू एड्रेस इट in as simple and as meaningful way as possible. So how many marks, or what would you like to give yourself in terms of learning enhancement out of 10? Sir, I'll rate 7. 7. 7 on So 10. thank you. Wonderful. That means you have the knowledge of the subject. You are trying to put more efforts, and let's see and get success. Thank you very much. Wishing you all the best.